Hi friends, welcome on Europedia panel discussion, and let me tell you, this discussion is related to the interview of Nuclear Power Corporation of India Limited, both technical and HR. HR separate video is also there. You can watch that in detail, but Shubha ma'am will be telling briefly about HR also. There are mentors of each department: civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, chemical engineering, electronics and electrical. So all the mentors will be guiding you about the preparation, how to prepare. So what we are going to discuss in this panel discussion, let me tell you that number one, किस तरह का इंटरव्यू होता है, टेक्निकल परसेंटेज एंड एचआर क्वेश्चन परसेंटेज, हाउ टू प्रिपेयर टेक्निकल, फ्रॉम विच सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इज योर प्रोजेक्ट, इज योर इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट, व्हाट अबाउट जॉब एक्सपीरियंस, व्हाट अबाउट गैप, so what are the most expected questions and how you can prepare this all within next couple of days. We also know friends that BARC interviews are also going simultaneously, and BARC interview, Bhabha Atomic Research Center, and NPCIL, because both organizations are sister organization under Department of Atomic Energy. So interviews are also in Trombay, that is Anu Shakti Nagar, that is in Mumbai. So and BARC scientists are sitting in the interviews of NPCIL also. So that makes a sense that interview will be similar to BARC. So is there any difference between BARC interview and NPCIL interview? And at the last we will discuss how Europedia mentors are going to help you, what content we are going to provide you. So before I start, let me tell you friends, with our this video there is a link attached of WhatsApp group. You can join those WhatsApp group where each mentor including me are sharing the content including previous year questions asked and expected question from your branches. So now I start with Shubha ma'am, you. So as we know ma'am, BARC and NPCIL same time interviews. BARC we know there is no HR normally asked, and students have this perception that Nuclear Power Corporation of India Limited also there will not be any HR. So should we prepare for HR? What is the weightage of HR, and is this HR similar to other PSU or is there any difference? Sir, I'll answer one by one. The very first is कि similarity कैसे होती है. See, HR is there. Okay. 20% on an average HR is there. It can be more, it can be less. It is very subjective because it depends on person to person. किसी से ज्यादा पूछा जाता है, किसी से बिल्कुल जीरो पूछा जाता है और किसी से बहुत ज्यादा भी पूछा जाता है. Okay. Second thing, when you compare it with BRC, only introduction is asked particularly, Okay. right? Introduction आ गया, directly they will ask you to go on the board and they will ask you technical questions. Many times not even introduction, Not only even introduction name. is there. They will ask you आप कौन सी graduate है, that's it, and they will start with your technical round. Okay. But if I compare it with NPCIL, see, even introduction is asked in multiple domains. Introduce yourself, what you have not mentioned in your application form, कैसे traveling किया है आपने. So generic, they try to comfort you out and they are going to ask you a brief set of questions. But here there are less of soft skills questions. अगर आप बाकी PSU से compare करते हैं, the rest of the PSU जैसे HPCL है, कोई भी आप लगा लो, IOCL है, they go in depth of HR, right? They will ask you lots of soft skills questions. Soft skills में आता है जैसे हॉबीज क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, लीडरशिप एबिलिटीज कैसे हैं, सॉफ्ट स्किल होता है ये. Okay. ये नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है वेरी रेलेवेंट एंड टेक्निकल, दैट इज योर डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस. इट कुड बी रिलेटेड टू यू आर वर्किंग समवेयर, व्हाई यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू कम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस रिक्वायर्स योर इमेंस पैशन, पर्टिकुलरली बिकॉज आई टेल यू यहाँ पे रीलोकेशन बहुत ज्यादा है आपकी, और दैट टू आप मेट्रो में काम करें, मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं. देयर वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर आल्सो, आई गिव दैट द रेफरेंस पॉइंट. दिल्ली का स्टूडेंट था, ही वाज अ कैंडिडेट ऑफ दिल्ली एंड ही वाज आस्क्ड कि चलो आपको हम कुडमकुलम में पोस्ट कर देते हैं, तमिलनाडु. ठीक है. अब आप रह रहे हैं बिल्कुल बिजी लाइफ, सिटी लाइफ में, आपकी पोस्टिंग कर दी मैंने आइसोलेशन में. आप कैसे, आपको लगता है कि आप वहां पे कैसे मैनेज कर पाएंगे? देयर विल बी कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं, कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं, लेमैन से बात करना, लैंग्वेज बैरियर्स, फूड बैरियर्स, लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर. सो दिस थिंग रिक्वायर्स कि अगर आप बहुत अच्छे से, इफ आई से आपके अंदर पैशन है ना, तभी आप इन जॉब्स में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. इफ यू से कि नहीं अभी तो हाँ कर देंगे, बाद में, इट इज नॉट गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू. सो दे आर गोइंग टू आस्क यू सच चैलेंजिंग क्वेश्चंस, particularly internship related, domain specific and project related. So this is what you have to prepare. Okay. And particularly one more thing, in PSUs, other PSUs, we can give you skeleton questions, skeleton answers, which is common for everyone. But when I want to know why you are leaving the organization, I want to know your perspective also, and then I have to combine it with the realistic answers. मतलब इसमें one to one interaction बहुत important है, आपके pointers सुनना बहुत important है, then only we can frame a very good HR answer. But in other PSUs, skeleton still works, not in this organization. So but they have to prepare for HR and specific HR questions. Right. I remember Shubhal, there are a couple of questions which are very relevant for this interview. One, as you said, relocation. That you are at particular place and remote location पे आप चले जाओगे. ये बहुत important होते हैं उन organizations के लिए, like where the job position is in remote locations, like NHPC,
लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, Right, लाइक sir. यू नो दिस एनपीसीएल, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि इफ यू, बिकॉज दिस इज थ्रू गेट and Right. high ranker You have also other are going plans. for interview, हाँ. so they ask you that on the basis of gate you are going to get other PSU also, जैसे NTPC आपको मिल रहा है तो why you will be Exactly, sticking to this, that is Right, another thing. right. Third, you know, they sometimes ask the passion because it's a nuclear power plant related domain, so they, as you said, they check your passion also, that what motivated you to go for this particular organization, for this power plant, so why you want to join this particular job. So these are couple of questions of HR which obviously True, are sir. very very important. So that's what I said. It's very subjective. 20% से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है. It depends on the domain you are coming from. Yes. That's the way it will be. Okay. Now coming to technical part, Vinay sir, you will be telling about the chemical engineering students. First, I will ask you the difficulty level and duration interview का कितना होता है सर ओवरऑल? सर जैसे अभी आपने बताया था कि अभी बार और एनपीसीएल दोनों के इंटरव्यू एक साथ आए हुए हैं। अगर मैं टेक्निकल पोर्शन की कंपेयर करूं दोनों में, तो बीआरसी में इंटरव्यू का जो लेवल है काफी डिफिकल्ट पूछा जाता है। एनपीसीएल में इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसमें आपके पास जो टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े सिंपल रहेंगे, जिसमें आपके पास आपको बेसिक ग्राफ्स ड्रॉ करने को बोल दिया जाता है, या फिर आपके पास सिंपल, अगर हम बात करें, फॉर्मूलाज आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन बीआरसी में अगर जब हम जाते हैं तो काफी डिटेल इंटरव्यू आपसे पूछा जाता है, पूरा कंप्लीट आपको डेरिवेशंस करने को बोल दिया जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए सब फेवरेट सब्जेक्ट्स की, एज पर केमिकल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो इसमें आपके पास थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये कुछ 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें एनपीसीएल में जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिलेटेड हमारे पास काफी ज्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर टॉपिक, उससे रिलेटेड उसकी डिजाइनिंग पार्ट आपसे पूछी जा सकती है। अगर हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी लेमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप बात करोगे तो एनालॉजी से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटिंग दी हीट ट्रांसफर विद द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स विद द मास ट्रांसफर। तो ये कुछ आपके पास एरियाज है जहां से क्वेश्चन काफी स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। इसी के साथ इस पे भी डिपेंड कर जाता है कि जो कैंडिडेट आ रहा है इंटरव्यू के, क्या वो एक्सपीरियंस है या फिर कम्प्लीटली फ्रेश है। इन केस अगर कैंडिडेट बिल्कुल एक्सपीरियंस है, काफी टाइम का उसका एक्सपीरियंस है, आई से 4 to 5 years, इन दैट केस पूरा का पूरा इंटायर जो इंटरव्यू जा सकता है वो एक्सपीरियंस बेस पे स्टडी। जैसे कि अब आपके पास कोई कैंडिडेट है जिसको मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस जो रहता है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में रहता है, स्पेसिफिकली पंप से रिलेटेड, तो पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है वो स्पेसिफिकली पंप्स के ऊपर ही स्टडी कैरी आउट होगा, जिसमें आपको ग्राफ बनाने को बोल दिए जाते हैं, या फिर डायग्राम्स क्रिएट करने को बोल दिए जाते हैं, और साथ में जैसे हम केसिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ केसिंग भी हम पूछी जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, जो केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो जनरली पंप्स को स्टडी करते नहीं है, ना ही वो हाइड्रोलिक्स पार्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन इंटरव्यू में पंप्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी ब्रांच को, चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे केमिकल के हो, पंप से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द साइंटिफिकल पंप्स। तो ये कुछ पार्ट। ओके, एंड सर अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स बताए, दीज आर माय फेवरेट, डज दैट मीन दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम देयर ओनली? नहीं सर, ऐसा कोई कंपल्सरी टास्क नहीं है। जैसे ये इस पे इंटरव्यू की जो एक्सपर्टीज किस चीज पर, इस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैंडिडेट ने मेंशन कर रखा है कि हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, बट दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेशन पार्ट। Okay, they can directly ask you how does the refrigerator work, what are the important components here. Okay, so we have to explain each and everything from that part also. Okay, so we can expect the question out from the favorite subject also. Okay, friends, BARC and NPCL are different interview. BARC में you may get only 2-3 questions and they will keep on dragging you in the depth, they will keep on increasing the difficulty level, and they are not looking for answer, they are looking for approach in BARC, like how you are approaching the problem. Sometime you know they may not be knowing the even answer, even scientists may not be knowing the answer for the question they have given you, but they want to check your approach and they are not looking for the answer. Whereas in NPCL obviously questions are mix of horizontal and vertical depth, that means they will be asking you simple question, 15-20 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और फिर वो डिफिकल्टी भी बढ़ाते हैं। तो टिपिकल पीएसयू में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरव्यू, आपसे क्वेश्चन पूछा, सेकंड लॉ बता दो, फर्स्ट लॉ बता दो, आपने आंसर किया, वो आगे चलते हैं, they change the question. Then NPCL they will go little in depth, and BARC only 2 question, they keep on taking you in the depth. That is the difference. तो accordingly आपने friends preparation करनी है। दुष्यंत sir, over to you, your domain sir. Right sir, I'm from electronics as you Electronics, okay. So basically अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट उनको प्रिपेयर करने चाहिए। सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कम्युनिकेशन, सिग्नल एंड सिस्टम
एंड कंट्रोल सिस्टम। सो ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहने चाहिए जो आप वहाँ पे बोलोगे जाकर, तो ये आपको एज देंगे पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे सर ने पहले ही बताया कि भाई अगर आपने फेवरेट सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट अपने बोले हैं तो वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि वो 5 सब्जेक्ट से ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। वो क्वेश्चंस आपको सारे सब्जेक्ट से, नेटवर्क से भी पूछ सकता है, नेटवर्क को वो रिलेट कर सकता है आपका कंट्रोल सिस्टम से। तो वैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि जो पैनल के अंदर मेंबर्स बैठे हुए हैं उनकी एक्सपर्टीज किस डोमेन में है। अगर वो पर्टिकुलरली वीएलएसआई डोमेन से रिलेटेड कैंडिडेट मतलब एक्सपर्ट बैठा हुआ वहाँ पे, तो नो डाउट वो आपसे वीएलएसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, चाहे आपने फेवरेट सब्जेक्ट बोला है वीएलएसआई को या नहीं बोला है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है उससे। दूसरी चीज है, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार वो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, जो आपने फाइनल ईयर में अपना प्रोजेक्ट किया होगा, या फिर आपने इंटर्नशिप अगर कहीं पे की है तो इंटर्नशिप में आपने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंटर्नशिप की है, तो उससे क्वेश्चनिंग भी वो लोग करते हैं। तो यहाँ से ये नहीं है कि खाली सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है, एक्स्ट्रा चीजें भी, जैसे आपने अपनी जो इंटर्नशिप की है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, या फिर जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसको भी एक बार को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा इस इंटरव्यू। ओके, अच्छा दुष्यंत सर, हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु विल जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल? सर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जो अपने स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारी एक डिटेल डॉक्यूमेंट बना के, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के Okay, अंदर। and friends, other than technical document, you will be getting HR document also. So one HR question document, another is NPCIL as organization. Questions are asked from NPCIL as organization, like where are the power plants? Which power plant do you know? Last time I remember there was a student from Bihar. He was asked that where is the power plant in Bihar? He said there is no power plant in the Bihar. Where it can be created if you want to create it now? तो कहाँ पे commissioning किया जा सकता है? Similarly from Haryana, is there any plan to create new reactor or new power plant in Haryana? तो अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिसीजन आ रहा है, गवर्नमेंट की ऐसी बात चल रही है दैट न्यू पावर प्लांट इज टू बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज और समथिंग, so those questions are asked, and obviously it is a nuclear power plant, friends, so they will ask you what is heavy water, what is basic terminologies related to nuclear power reactors. So they will be asking you that, so that everything will be provided to you in the document. Please go through that particular document also. Now over to you, Rajiv sir, for mechanical engineering. सर मैकेनिकल में अगर मैं 5 सब्जेक्ट की बात करूं, और मैं इस बेसिस से बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था जो लास्ट ईयर था, मेजर उसका 5 सब्जेक्ट जो बताया था, जो एक थर्मल इंजीनियरिंग हो गया सर, स्पेशली यहाँ पे उसको फोकस करना न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, हीट ट्रांसफर कॉमन है सर, और एक लास्ट जो मैकेनिकल का सबसे बड़ा ब्रॉड बोला जाता है, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ से क्वेश्चन आता था, आया है जो पूछा गया। हालांकि ये बात सर ने बताया, कोई जरूरी नहीं कि उसी से पूछो, हो सकता है बियॉन्ड भी चला जाए, बट अगर एक बार आप ये 5 सब्जेक्ट कमांड करते हो तो मोर और लेस सर ये इधर पूछ लेता है क्वेश्चन, थोड़ा बाहर आ सकता है। और सर एक मैं एक बताऊं कि मैं बात कर रहा था कुछ स्टूडेंट्स से, उन्होंने एक पूछा उनसे कि बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने इसी तरह से एक बोला फ्लूइड है, तो उनको बोला फ्लूइड में तुमने क्या क्या पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि ये पढ़ा, वो पढ़ा, बाउंड्री लेयर पढ़ा, डायनामिक, तो उन्होंने बोला और क्या पढ़ा, तो उन्होंने बोला सर एक हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस। बोला तुमने ये क्यों पढ़ा, तब उन्होंने फंस गया कि हमने क्यों पढ़ा, मतलब सर देखिए उसका पूछने का क्या टेक्निक था कि भाई तुमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा। इसी तरह से उससे पूछा और बताओ, तो बोला थर्मल, बोला थर्मल में क्या क्या, बोला आरएसी, और ऐसे करके बोला, तो बोला आरएसी में बताओ सीओपी क्या होता है, तो सब रट के जाता है डिजायर्ड अपॉन एनर्जी इनपुट। उनको बोला हमें ये नहीं समझना है, ये बताओ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, क्या से कोरिलेट कर सकते हो रियल लाइफ में, तो सीओपी ज्यादा है तो कॉस्ट कम होगा कि ज्यादा होगा। मतलब इससे मुझे एक चीज नजर आ रहा है सर, ये बड़ा बेसिक्स पे जा रहा है पूछने के लिए, बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है कि सिर्फ रट के आ गया, तो ये चीज देखना पड़ेगा सर। और एक बात और मैं ऐड करूंगा सर, जब मैं बात कर रहा था कुछ लड़का बोला शुरू में अगर उनसे टफ क्वेश्चन पूछ गया ना वो नर्वस हो गया, बाद में उससे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जैसे प्रेशर विसल है और स्टोरेज टैंक है, उसके में क्या डिफरेंस है, ये नहीं बता पाया। इवन अच्छा लड़का था वो। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा कि बताओ जितना प्रेशर विसल आपने देखा होगा जनरली सर्कुलर या स्फेरिकल बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। इवन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि शुरू में उससे टफ क्वेश्चन था तो नर्वस हो गया था, तो ये उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर फ्रेंड्स, कई बार ना आपको अपने फेवरेट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स तैयार करने के साथ साथ वीक सब्जेक्ट्स के भी 3 नाम याद करके जाना, बिकॉज इन द इंटरव्यू दे विल आस्क यू आपके सबसे वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एंड यू से मशीन डिजाइन, ओके लेट मी आस्क यू समथिंग फ्रॉम मशीन डिजाइन, ये पूछता है वो आपसे। तो अब इसमें स्ट्रेटेजी ये है कि जो आपने वीक अपने सब्जेक्ट्स बताने हैं इंटरव्यू के अंदर, वो एक्चुअल में वीक नहीं होने चाहिए आपके, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सो यू जस्ट मेक अ स्ट्रेटेजी एंड 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स, और उसके बाद 2-3 ऐसे नाम याद रखना
जो आपके वीक तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया वीक हैं तो आप बता सके। नंबर 2, समटाइम दे विल से अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स 5 बताओ। आपने बोला हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये तो आपको आते ही है। चलो मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन से पूछ लेता हूँ। सो ऑल सॉर्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन यू विल गेट देयर, इसी को एक्स फैक्टर बोलते हैं। वो आपका दिन कैसा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक जो राजीव सर ने बताया, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है फ्रेंड्स। आपका इंटरव्यू अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिए तो पक्का गलत होगा। एंड आपको क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता है, लेकिन जितना भी आपको आता है आप कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं तो उसको आपको एडवांटेज मिलेगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो। एक चीज और सर, कभी कभार होता है कि आप डायरेक्टली मत बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सपोज कीजिए उससे मटेरियल साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे पूछ दिया स्टेट सिस्टम ब्लॉक का प्रॉपर्टी। अगर ये लड़का इतना कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ ऐसा टर्म यूज करता है जो सोम से रिगार्डिंग है, तो हो सकता है यहाँ से छोड़ के ये उस टॉपिक से सोम में घुस जाए। तो ये अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सकता है लड़का। नंबर 2, अगर आपने बीटेक का प्रोजेक्ट, एमटेक का प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको जरूर तैयार कर लें। रवि सर, योर सब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सेम थिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन में। उसमें फर्स्ट नंबर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पर आपको जो है फोकस आपका करना है। और अगर आपका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में हमें ट्रांसफार्मर पार्ट आपका और सिंक्रोनस मशीन पार्ट पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन आपका जो है पावर जनरेशन के टाइम हमें आपका मशीन की यूज करना आपका होता है, तो उस पर हमें आपका ज़्यादा आपका फोकस करना होगा। अगर उसके बाद अगर आपका बात करें तो ये आपका 2 सब्जेक्ट आपको सबसे आपका स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे स्टार्ट यही होगा और एंड। अब उसके बाद इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो कंट्रोल सिस्टम है, मेजरमेंट है, आपका नेटवर्क थ्योरी में बहुत आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेजर आपका जो है अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जरूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि पावर जनरेशन अगर हो रहा है कहीं पर तो जैसे हमने कहा सिंक्रोनस मशीन और उसके बाद पावर आपका जनरेशन में कौन कौन से आपका जो है जनरेटिंग यूनिट आपका काम करते हैं, उस पर आपको जो है ध्यान रखना होगा। Wonderful. And friends, I want to tell you one more thing. For all these subjects, there are marathon videos available on the panel of Purepedia. Marathon videos means जैसे सर ने बताया मशीन्स या पावर सिस्टम, तो वो 6-7 घंटे में you can revise that entire subject from interview perspective. दुष्यंत सर, एक मैं आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पूछ लूं, हमारे मेंटर यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आप बता सकें। सर, अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों की बात करूं तो आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है बेसिकली सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो आपका रहना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से आते हैं। तीसरा आपका कंट्रोल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एंड नेटवर्क थ्योरी। ये 5 सब्जेक्ट आपको अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से जाते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए। ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो बेसिकली सेंसर और ट्रांसड्यूसर वाले पार्ट और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो वाइडली आपसे पूछे जाते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से जाते हैं। वंडरफुल। सो ओवर टू यू विक्रम सर फॉर सिविल इंजीनियर्स। थैंक यू सर। अभी मैं इस इंटरव्यू को ना 2 पार्ट्स में रखना चाहूँगा। फर्स्ट, जो बच्चे एक्सपीरियंसड है, जिनका कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है या जिनका कोई डिजाइनिंग एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके डोमेन के पूछे जाएंगे। और दूसरे जो अभी फ्रेशर्स हैं, दे डिड देयर मास्टर्स और ग्रेजुएट हुआ है, क्योंकि गेट बेसिस के ऊपर इंटरव्यू रहेगा, तो उनसे उनकी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा अभी वर्किंग है, चाहे आप डिजाइन में कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ वर्क कर रहे हो, दे विल रिलेट इट विद द इंडस्ट्री कि अगर आप NPCL ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें उस इंडस्ट्री में कैसे बेनिफिट होगा। और सेकंड थिंग सर, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो, वट एवर विद द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सम R&D अबाउट द इंडस्ट्री। जैसे अभी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सो व्हाट कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी वी हैव फॉर द न्यूक्लियर पावर द प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम द नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, क्या क्या हमारे पास टेक्निक्स रहती हैं, उसके ऊपर जनरली बेस्ड रहेगा सर। और मेरे ख्याल से अगर जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन डिजाइन इंडस्ट्री, और जो अभी फ्रेशर हैं या जिन्होंने मास्टर्स किया है, जो अभी इंटरव्यू में जाने वाले हैं, सो दे कैन थिंक अबाउट देमसेल्फ। लाइक अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे सर, मेजर सब्जेक्ट्स तो निकल गया था, जैसे हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक RCC एक बहुत मेजर सब्जेक्ट्स होता है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो सॉइल के ऊपर बनेगा, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग लाइक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एंड मोस्ट ऑफ थिंग स्टूडेंट्स वर थिंकिंग एज, मेरे ख्याल से सभी ने बोल दिया कि जो एक इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन करते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, दे वर थिंकिंग कि दूसरा जो मेरा पोस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो वो इंटरव्यू सेम रहेगा, बट वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। सो दे हैव टू लुक टू द रिक्वायरमेंट, क्या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या वर्क चला हुआ है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिस भी एरिया में इंडिया में जिस भी कंट्री जिस भी पार्ट में वो प्रोजेक्ट चल रहा है, किस तरह का वहाँ का टोपोग्राफी है। समटाइम्स सर सॉइल के ऊपर, लेवलिंग के ऊपर सवाल आ जाते हैं, जो सर्वे एक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, बच्चे लेके चलते हैं कि इसका वेटेज नहीं है, लेकिन जब वो एक सवाल में फंस जाएंगे, एज सर ऑलरेडी टोल्ड, एक बार अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, सो उसको गेन करने में मेरे ख्याल से वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है और उतना बच्चा कर नहीं पाता, तो डैमेज हो जाता है। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है सर, एक हमारे पास सब्जेक्ट्स होता है QA QC का, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का। तो आप कौन कौन से टेस्ट करते हो, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, यू मस्ट हैव द क्लियर आइडिया अबाउट दैट वन। और इसके साथ प्रोजेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ये सर। Wonderful. So friends, you have heard all the expert mentors, and I am proud to tell you all that this team is one of the most experienced team in India, because YourPedia only initiated the interview guidance thing couple of years back. If I'm not wrong, 2018-19 we published first videos on interview guidance. So they are very very experienced mentors, friends. Take their benefit from them. And another thing is, इंटरव्यू की प्रिपरेशन पढ़ के और नॉलेज गेन करके नहीं होती, इंटरव्यू दे के होती है। इट इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस। ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड विच ऑल ऑफ यू हैव, बिकॉज आपने रिटन एग्जाम किया है। अब उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को वेल डायरेक्ट करना है। इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स यू आर गोइंग टू गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट along with solution and expected question। वो करते चले जाओ और इंटरव्यू लगाते जाओ। जितने ज्यादा इंटरव्यू आप लगाएंगे, मॉक्स लगाएंगे मेंटर्स के साथ, उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गेट इनटू वेरी वेरी प्रेस्टिजियस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एक्चुअली फॉर द growth of the nation, socio-economic development of the country, because nuclear power is required in India. We are fastest growing economy and energy deficient nation, especially when you see geopolitical situation, what is happening to fossil fuel, to crude oil. So India needs nuclear power reactors, and you are getting opportunity to be part of such organizations. So all the very best, friends. Look forward to mentor all of you. Thank you.